گلشن اقبال دولمیا شانتی نگر میں دکان پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت اسماعیل یوسف زئی کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گلشن اقبال دولمیا شانتی نگر میں دکان پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت اسماعیل یوسف زئی کے نام سے ہوئی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گلشن اقبال دولمیا شانتی نگر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت اسماعیل یوسف زئی کے نام سے ہوئی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ شانتی نگر میں دکان پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ مقتول کی شناخت اسماعیل یوسف زئی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ گلشن اقبال دولمیا شانتی نگر میں نامعلوم ملزمان کی دکان پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت اسماعیل یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔ گلشن اقبال دولمیا شانتی نگر میں دکان پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ گلشن اقبال دولمیا شانتی نگر میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت اسماعیل یوسف زئی کے نام سے ہوئی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سپر ہائی وے میمن گوٹ کے قریب 3 خواجہ سراؤں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کا جائے وقوع کا دورہ، پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے پولیس کو فوری ایکشن کی ہدایت کر دی۔ سپر ہائی وے میمن گوٹ کے قریب 3 خواجہ سراؤں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کا جائے وقوع کا دورہ، اسامہ ملک کی رپورٹ۔ 3 خواجہ سراؤں کا بے ایمانہ قتل۔ سپر ہائی وے میمن گوٹ کے قریب خواجہ سراؤں کی گولی لگی، لاشیں برآمد۔ خواجہ سراؤں کو سر اور سینے پر گولیاں ماری گئیں۔ جائے وقوع سے 9 mm کے 2 خول مل گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ کا نوٹس رپورٹ طلب۔ سید مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ کو قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے پرس، ٹیشو پیپر اور دیگر سامان ملا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خواجہ سرا معمول کے مطابق اسی مقام پر آئے تھے اور انہیں اسی جگہ نشانہ بنایا گیا۔ جی دیکھیں، 3 یہاں تھے خواجہ سراؤں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے یہ۔ تینوں کو گن شاٹ کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ 2 کے سینے میں ایک گن شاٹ ہے اور ایک کو سر میں گولی لگی ہے۔ یہاں سے ہمیں کرائم سین سے خول بھی مل گئے ہیں، کچھ ان کے پرسنل یوز کے جو آرٹیکلس ہیں وہ بھی ان کے پرس وغیرہ اور باقی چیزیں ملی ہیں۔ ڈکیتی مداحمت وغیرہ تو خیر یہ بالکل اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی، کچھ دشمنی یا کوئی رنجش اس طریقے کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ لاشوں کو قانونی کارروائی کے بعد جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق قریبی سڑکوں پر نصب CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی پولیس کو قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ سراؤں معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، جنہیں عزت و احترام دینا سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے ایس ایس پی ملیر سے ابتدائی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ کیا گھروں سے نکلنا بند کر دیں؟ خواجہ سرا سراپا چمندیا رانا کی قیادت میں جناح اسپتال کے باہر مظاہرہ، خواجہ سراؤں کی قتل کے شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا ان واقعات کے سبب کمیونٹی میں شدید خوف ہے، جلد پریس کانفرنس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ AVLC کی خفیہ اطلاع پر اورنگی میں پولیس مقابلہ، 2 انتہائی مطلوب کار لفٹر زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان سے تھانہ گارڈن سے چوری شدہ کار اور اسلحہ برآمد۔ ترجمان AVLC کے مطابق ثاقب قریشی 20 سے زائد گاڑیاں بلوچستان منتقل کر چکا۔ ملزم اس سے قبل بھی دہشت گردی اور چوری کے کیسز میں گرفتار ہو چکا۔ گینگ کے دیگر کارندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ گارڈن عثمان آباد میں مین ہال کی صفائی کے دوران 3 افراد جان کے بازی ہار گئے۔ مالی مجبوری کی وجہ سے 10 سے 15 ہزار کے عوض غلاظت صاف کرتے ہوئے جان گنوا دینے والوں میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں۔ مرنے والے تمام افراد پیشہ ور خاکروب نہیں تھے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ گارڈن عثمان آباد میں صفائی مہم کے دوران افسوسناک واقعہ، مین ہول کی صفائی کے دوران 4 افراد ڈوب گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والے افراد 1 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن واٹر کارپوریشن کے پاس ایسے آلات سے نمٹنے کا انتظام نہیں تھا۔ یہ 4 تھے، 3 بچے تھے اور ایک ان کا والد ساتھ تھا۔ جیسے کہ یہاں کی UC چیئرمین وغیرہ کام کرا رہے تھے
ना इनके पास कोई सेफ्टी थी ना कुछ था। जब एक बंदा अंदर गया, उसके पीछे दूसरा गया, उसके पीछे तीसरा गया, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक एक करके तकरीबन सारे बेहोश हो चुके थे। सफाई के दौरान मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त जॉर्ज और विशाल के नामों से हुई। मेरा एक भाई है, वो भी उनके साथ था, मेरा साला था, मेरा ससुर था, ये तीनों मजदूर थे। इनको बुलाया गया काम करने के लिए और ना कोई सेफ्टी बेल्ट था, ना कोई ऊपर सर पे खड़े थे, सिर्फ ये बोल रहे थे कि अंदर जाओ काम करो। जब ये एक एक करके बेहोश होने लग गए गैस की वजह से, तो इनको बचाने के लिए जो मज़दूर थे उनको बोल रहे उसको बचा, वो दूसरा उसको बोल रहा है बचा, वो एक गया वो वापस नहीं आया है, दूसरा गया वो भी नहीं वापस आया, तीसरा मेरा भाई है, ये चौथा ये खड़ा हुआ है। कहने का मकसद 3 फौत हो गए, चौथा ये सामने मौजूद है आपके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाने के लिए जाने वाला फैसल भी जख्मी हुआ। फैसल का कहना था कि गहराई की वजह से तीनों अफराद डूबे, अपनी जान पर खेलकर उनकी जानें बचाने की कोशिश की। किसी ने आके बताया कि अंदर 3 बंदे मर चुके हैं। तो जब हम यहाँ पर आए तो आधा पौना घंटा हो चुका था, काफ़ी रश था, कोई बचाने वाला नहीं था इनको। तो इनका एक छोटा ही बच्चा था, उनको देख के फिर हिम्मत पकड़ी, फिर अंदर। छोटा बच्चा कितना हो? इसका छोटा बच्चा था 11-12 साल का, इनका एक बच्चा था, वो बेचारा रो रहा था बाहर। तो उसको देख के ही मेरी हिम्मत पकड़ी, जब अंदर गया हूँ तो सारे बंदे एक्सपायर थे। एक को निकाला, फिर दूसरे को निकालने की कोशिश करी, तो अंदर मैं भी उसी टाइम बेहोश हो गया था, ऑक्सीजन ना मिलने की सूरत में। मेरे को तो बहुत जख्म आया, बेहोश हो गया था अंदर। मेरे दोस्त यारों ने मेरे को खींचा, बाहर निकाला, अस्पताल लेके गए। इमदादी रजाकारों ने 3 अफराद की लाशें निकाली और एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों की लाशों को एदी सरखाने मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 3 अफराद मामूली जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉलर और मुसाफिर बस को हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 3 अफराद मामूली जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियारी गैंग वॉर और भत्ताखोरी में मुलविस 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान मुकाबले में मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त और क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। SIU, CIA और पुलिस मुकाबलों की तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुल्जिमान पर 25 से ज़ायद भत्ते, डकैती, कत्ल, असलहे और बारूदी मवाद जैसे संगीन मुकदमात दर्ज मिले। मुल्जिमान से भत्ता तलबी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन, सिम, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ SIU में मुकदमा दर्ज। शहर से जराइम के खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 17 मुल्जिमान धर लिए। असलहा, मुनशियात, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में मफरूर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोश शामिल। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। 14 सितंबर की शब गुलशन इकबाल नाले में मुबैना छलांग लगाकर लापता होने वाली खातून डॉक्टर का ताहाल सुराग न लग सका। 26 साल की मशल करीम के वालिद की मुद्दत में थाना मुबीना टाउन में मुकदमा दर्ज। शौहर हसनैन को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सोमालिया जाने वाला मुसाफिर टैंपर्ड वीजा पर ऑफलोड। मुसाफिर मोहसिन नवाज पाकिस्तानी पासपोर्ट वर्क वीजे पर सफर कर रहा था। मुसाफिर को ऑफलोड करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सोमालिया जाने वाला मुसाफिर टैंपर्ड वीजे पर ऑफलोड। मुसाफिर मोहसिन नवाज पाकिस्तानी पासपोर्ट वर्क वीजे पर सफर कर रहा था। FIA और सिंध रेंजर्स की सदर में मुश्तरका कार्रवाई। जाली डॉक्टर्स की फरोख्त में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद शफीक के नाम से हुई। मुलजिम को मोबाइल मार्केट सदर कराची से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल रोहड़ी सर्कल की टीम ने मुनशियात की बड़ी खेप की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल रोहड़ी सर्कल की टीम ने मुनशियात की बड़ी खेप की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 30 किलो चर्च बरामद कर ली। तर्जुमान महकमा एक्साइज के मुताबिक AETO कमरुद्दीन सयाल की सरबराही में सेंट्रल जेल रोड सक्कर पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई।
गाड़ी से करोड़ों रुपए की मालियत की 30 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। मुनशियात स्मगलिंग में एक मुलजिम मोहम्मद अनवर वल्द मोहम्मद हाशिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुई सदरन गैस का गैस चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला मलीर के शाह लतीफ टाउन में 3 मुकामात पर छापों के दौरान 2000 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सुई सदन गैस कंपनी का मलिर शाह लतीफ टाउन समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन, मुख्तलिफ मुकामात पर छापे, बड़ी तादाद में गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। गैस चोर माफिया कोरंगी लैंडिंग इंडस्ट्रियल एरिया को गैस फराहम करने वाली 20 इंच की पाइपलाइन से पाइप जोड़कर गैस चोरी कर रहा था। पहले मरहले में यार मोहम्मद गोट फेज 2 में 450 मकानात को गैर कानूनी तौर पर गैस की फराहमी मुनक़ता की गई। दूसरे मरहले में समूह गोट में गैस के 1000 गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। तीसरे मरहले में गार्डन में 600 गैर कानूनी कनेक्शन को खत्म कर दिया गया। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। तो ये सारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ये हमारी जो मेन सीधी गोट से जो TBS है, वहाँ से जो 20 इंच की लाइन है, उस पर गैर कानूनी तौर पे ये 2 इंच का क्लिप एक देखा था, आपने देखा था, कवर किया है। ये 2 इंच का क्लिप था जिसके ये फीड कर रहा था। ये जो लाइन है पूरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करती है। तो वहाँ से गैर कानूनी तौर पर ये क्लिप लगाया गया और जिन 3 आबादियों को मैंने आपको बताया, उसके दौरान ये इनसे एक माफिया सरगर्म हुआ है जो इस तरह के कारनामे करता है। सुई सदन के CGTO के इंचार्ज इंजीनियर महमूद गौली का कहना था कि गैर कानूनी कनेक्शन से कंपनी को नुकसान होता है। फिलहाल हमें 3 मकामात का पता चला है। फिलहाल हम यार मोहम्मद गोट फेज 2 यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। तकरीबन इसमें जो घर हैं 450-500 इन्वॉल्व हैं, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमें बर वक्त इतला पे हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सुई सदन गैस कंपनी चोरी के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की 106 सड़कों पर काम शुरू हो गया। मेयर कराची का शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का आज़म। बोले जमात इस्लामी के टाउन्स को अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके। लगता है नौ टाउन वालों से हाफिज साहब भी नाराज हैं। मुतहिदा पर भी बार बोले MQM को तय करना होगा वो किसके साथ हैं। चर्ची हमारे तार और लाइटें चोरी करके ले जाते हैं। नशइयों के खिलाफ इक़दामात उठाने पर जोर। नाम तब्दील करने से तो मसाइल हल नहीं होते। 2017 से एमेजना रोड का बुरा हाल है, और वो बुरा हाल इसलिए है कि उस ज़माने में उन्होंने काम स्टार्ट किया था लेकिन काम ये मुकम्मल नहीं कर पाए। क्या आप हमें टाइम लाइन दीजिए कि कितने हफ्तों में जो पुराना काम है उसको ठीक कर देंगे और जो नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितने माह में मुकम्मल करेंगे। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस्ती। बल्दिया उजमा कराची की जानिब से गाजियाबाद, सुरजानी टाउन, सोल्जर बाजार और महमूदाबाद में तरक्याती काम जारी हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में जारी कामों की तस्वीर ट्वीट कर दी। मेयर कराची का एक्स पर अपने ट्वीट में कहना था कि शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। टाउन पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अपने हदूद में रहकर काम करें। बल्दिया उजमा कराची शहर के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। नॉर्थ कराची सेक्टर 7 में सीवरेज का नाक़िस निज़ाम, इलाके की मरकजी शाहराह गंदे पानी में डूब गए। शहरी कहना है कि 3 साल से मसला दरपेश है। गंदगी और मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 साल से नॉर्थ कराची तबाही की दास्तान बयान कर रहा है। सेक्टर 71 और 2 की दरमियानी शाहराह नकासी आब के निज़ाम की खराबी के बायस तबाह हो गई, जबकि 3000 से जायद घरानों के मकीनों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। इस पानी की वजह से, गंदगी की वजह से इतने मच्छर हो जाते हैं, गटर का पानी मिल जाता है, बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, कचरे जगह जगह। आप प्लीज़ मेरी यही अपील है सबसे अपने हुकूमत से कि सफाइयों का ख्याल करवाएं। बारिश होने से पहले से ही इसकी लाइनें बहुत ख़राब हैं, ये चेंज नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इन्हें कितनी मरतबा व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर चुके हैं। परेशानी यही हो रही है, नमाजी नहीं आ जा पा रहे हैं, और स्कूल बिल्कुल सामने। आप देखें स्कूल के बच्चे किस तरह जाएंगे। शहरी बोले ना मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही स्कूल के बच्चों की किसी को फिक्र है। इंतजामिया रिहायशियों को इस गंदे पानी की अजियत और बीमारियों से निजात दिलाए। यूसी काउंसलर मोहम्मद अयूब ने कहा कि कई मकामात पर सेवरेज लाइनें तब्दील की, रोड का मामला बस से बाहर है। वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जिम्मेदारियां पूरी करे। सामने मस्जिद है, वो देखें,
उसको भी पब्लिक ने अपने तौर पे खुलवाया है पानी, क्योंकि नमाजियों की बहुत दिक्कत हो रही। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बेचारे बैग गिर रहे हैं, पब्लिक पेरेंट्स तक बेचारे स्लिप हो रहे होते हैं सुबह के टाइम में। ये मतलब वार्ड 2 है, यहाँ हम सेवरेज वालों को कह के थक गए उनको कि भाई वो आज कल लाइन क्यों नहीं डलवाई आपने? तो यहाँ लाइन का मसला नहीं है, ये वो कहते हैं कि जी हमें क्लियरेंस दे दें, यहाँ पर मतलब मशीन लाएंगे करवाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं करवा सके। यूसी इंतजामिया का कहना है कि मज़कूरा सेक्टर्स में जिम्मेदारी ना होते हुए भी 5 मकामात पर नई सेवरेज लाइनें बिछाई हैं, जो इजाफी माली बोझ साबित हुआ। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रईस अमरोही की 37वीं बरसी पर मेयर कराची ने शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रईस अमरोही की शख्सियत और फ़िक्र आज भी जिंदा है। उनकी इल्मी और फ़िक्र खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मारूफ शायर, सहाफ़ी व कॉलम निगार रईस अमरोही की 37वीं बरसी बल्दिया उज़्मा की जानिब से तकरीब का एहतमाम। मारूफ शोरा और दानिशवरों की बड़ी तादाद में शिरकत। खालिदीना हॉल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अदबी दुनिया के दरख्शा सितारे रईस अमरोही की याद में प्रोग्राम मुनक़िद करना बल्दिया उज़्मा के लिए एजाज़ है। रईस अमरोही की अदबी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। वो एक अहद साज शख्सियत के मालिक थे। अमरोही साहब माजी में ब्रांड एम्बेसडर थे ज़बान के, जॉन एलिया साहब थे। आज हम सब बन सकते, कोशिश कर सकते और इनकी चीज़ों से सीखते हुए वो मशअले राह क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए। मैं चाहूँगा मेरे बच्चे बच्चियाँ इन चीज़ों को सीखें, आपके बच्चे बच्चियाँ इन तमाम चीज़ों को सीखें, और कोशिश ये हो कि इतने बड़े आदमी के लिए अगर कोई तकरीब मुनक्किद की जा रही है तो मजमा भी इतना बड़ा हो। मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने हीरोज़ को ओन नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों को हम सक्सेसफुली कन्वे करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बीआरटी ग्रीन लाइन से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में मेयर कराची का कहना था कि ये नहीं हो सकता 2017 की एनसीसी पर 2025 में काम शुरू किया जाए। शहर का अहम तरीन मनसूबा कब मुकम्मल होगा, इस हवाले से टाइम फ्रेम दिया जाए। 2017 में ये इजाज़तनामा दिया गया था, तब कंपनी थी KIDCL, उसके बाद वो कंपनी बन गई SIDCL, उसके बाद वो अब कंपनी बन गई है PIDCL। मेरी बुनियादी जो एतराज़ है इस बात पे कि कंपनीज़ का नाम तब्दील करने से तो मसाइल हल नहीं होते। 2017 से एमेजना रोड का बुरा हाल है, और वो बुरा हाल इसलिए है कि उस ज़माने में उन्होंने काम स्टार्ट किया था लेकिन काम ये मुकम्मल नहीं कर पाए। जब तक आप पुराने काम को मुकम्मल नहीं करते, आप नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, कि आप हमें टाइम लाइन दीजिए कि कितने हफ्तों में जो पुराना काम है उसको ठीक कर देंगे और जो नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितने माह में मुकम्मल करेंगे। मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची का कहना था कि MQM को अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। हाफिज नईम तनकीद नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या? कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21।